Good morning, students. So, welcome to our new lecture. In this particular lesson, we are going to discuss the effects of air pollution on plants and animals. Okay, in the last lecture, we have studied about the air pollutants. We have seen examples of air pollutants, the sources, and the effects of air pollutants. Now, in detail, we are going to discuss the effects of air pollution on plants and animals. Okay, so let us start with plants. So, what effect can we observe on plants if the air pollution has taken place? The very first effect is that the stomata of the plant is going to be closed. So there is one part which is there in the leaves of plant, okay, and that part which is one of the most important part, because the absorption of sunlight takes place by that part, and the photosynthesis process requires that part in a very significant manner. Okay, so the stomata, which is a very important part in a plant, okay, this stomata gets closed if it is exposed to air pollution. Okay, so if there is an air pollution in the surrounding and the plants are there, so the leaves which have this part stomata, they are going to close this part. Okay, and if the stomata is closed, a photosynthesis process cannot be take place easily. ओके अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया है किसी भी प्लांट के लीव में, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या होगा, ठीक से परफॉर्म नहीं होगा. कि सेकेंड इफेक्ट, स्लोइंग डाउन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी देखो स्टोमेटा अगर क्लोज हो रहा है तो सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो पर्टिकुलर प्लांट. ओके, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता ठीक से, और वो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. ओके, ग्रोथ इज रिटार्डेड, लीव्स फॉल ऑफ और बिकम येलो. इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है और जो लीव्स है प्लांट के वो येलो होने लगते हैं. ओके, अगर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो प्लांट्स के ऊपर ये इफेक्ट्स हमें देखने मिलेंगे. ओके, now effects on the animals, what we can observe, that the respiration is adversely affected. So if air pollution has taken place, so the respiratory system of the human beings or other animals are going to be affected by the air pollution. जो respiratory system है हमारा, okay, हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेशन का, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसके ऊपर आपको अफेक्ट देखने, आपको उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट देखने मिलेगा एयर पोल्यूशन का. ओके, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड इफेक्ट इज इरिटेशन ऑफ आईज. सो एयर पोल्यूशन है, एयर के पार्टिकल्स हमारे आईज को टच करेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारे आंखों में इरिटेशन होगा. ओके, बहुत सारे केसेस ऐसे भी है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे आंखों की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वीक होने लगती है. ओके, और अगर एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है. ओके, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज दैट इट अफेक्ट्स द ओजोन लेयर. Now we have studied in 6th standard that there are 5 layers in atmosphere. Okay, stratosphere, ionosphere, mesosphere, exosphere and troposphere. Okay, so there are 5 layers in atmosphere. The first layer is troposphere, obviously. So after the 5 layers, that is after the exosphere, there is one layer created, okay, over the atmosphere of the earth. Okay, and that layer is ozone layer. What does this ozone layer do? देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट हुआ है. ओके, एंड दैट लेयर इज नथिंग बट द ओजोन लेयर. जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, सनलाइट से जो हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सनलाइट से इमिट होती है,
उसको अर्थ के अंदर एंटर करने से रोकता है। ओके, इट प्रिवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन टू एंटरिंग इन द earth's atmosphere. Okay, it prevents the ultraviolet radiation from entering the earth's atmosphere. Okay, so it is one of the important layer, ओजोन लेयर। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ के अंदर एंटर कर जाती है तो इससे क्या होगा, जो एनिमल्स है, हम इंसानों को स्किन कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। हमारे बॉडी के ऊपर उसका एडवर्सली इफेक्ट देखने मिलेगा। तो ये जरूरी है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाए। ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, ये खराब नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कहीं पे, मतलब कहीं पे भी इस केस में आपको होल्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, ब्रेकेज नहीं देखने मिलना चाहिए। ओके, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से there are certain gases which are going to deplete or which are depleting the ozone layer. Okay, so the depletion of ozone layer is taking place, okay, due to certain gases. Okay, now we have studied that ozone layer is present below the stratosphere at the height of 48 kilometers. Okay, the ozone layer is present below the stratosphere at the height of 48 kilometers, okay, from the earth surface. So if this is the earth surface, then from the surface 48 kilometers away you will find the ozone layer. Okay, it protects the living world of the earth from ultraviolet radiations, okay, which are emitting from the sun. However, nowadays ozone layer is getting depleted due to following reasons. There are certain reasons, and due to those reasons the ozone layer is getting depleted. So the first reason is greenhouse effect and global warming. So what is greenhouse effect and what is global warming? We will discuss it. So though CO2 is present in very less quantity in the atmosphere, it plays very important role, okay, of absorption of solar heat. CO2 जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में क्या है, प्रेजेंट है। ओके, लेकिन कम अमाउंट में होने के बावजूद वो सन की रेस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब सोलार हीट जो है, मतलब जो हीट एनर्जी सन इमिट कर रहा है अर्थ के ऊपर, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। Over the last 100 years, the proportion of CO2 has been increased due to industrialization. इंडस्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से जो CO2 का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब क्या है कि CO2 मैक्सिमम सोलार हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वो जो सोलार हीट है वो अर्थ के बाहर नहीं जा रही है, वो अर्थ के अंदर ही पूरी तरीके से स्टोर हो रही है ड्यू टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so effect of this CO2 on the earth at temperature is nothing but greenhouse effect. इस वजह से क्या हो रहा है, देखो अर्थ के ऊपर जब सनलाइट इमिट होती है तो वो अपने साथ में सोलार हीट लेकर के आती है, हीट एनर्जी आती है उसके साथ में। वो हीट एनर्जी अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वापस क्या होती है, रिपेल होती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाने का काम करती है। ओके, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकता है, ये जो सोलार हीट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, इट एब्जॉर्ब्स द सोलार हीट। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो हीट एनर्जी है वो बाहर नहीं निकल रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही स्टोर हो रही है, और इसी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिमिलर टू CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC आल्सो ट्रैप द हीट। और सिर्फ CO2 हीट को ट्रैप नहीं करता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी हीट को ट्रैप करेगा। मीथेन जो है CH4 गैस, it also absorbs the solar heat, and CFC, that is chlorofluorocarbon, it also absorbs the solar heat, okay, in the atmosphere. So collectively these are called as greenhouse gases. So greenhouse effect, what is greenhouse effect? It is the increment or the increase in the earth's temperature due to the absorption of solar heat by the greenhouse gases. And what are the examples of greenhouse gases? Carbon dioxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbon,
and methane, CH4. These are the examples of greenhouse gases. Okay. Now the global temperature is gradually increasing due to greenhouse effect. Due to this, atmosphere is changing, causing disturbances in agricultural yield, distribution of wild animals, icebergs and glaciers are melting, causing increase in sea level. देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लाइमेट है उसके ऊपर आपको इफेक्ट देखने मिल रहा है। देखो क्लाइमेट, देखो नॉर्मली जो क्लाइमेट होना चाहिए, जो ड्यूरेशन होना चाहिए सीजन्स का, वो ड्यूरेशन अभी मेंटेन्ड नहीं है। पिछले साल बारिश ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन इस साल आप लोग देखो तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सो इसका मतलब क्या है कि जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, वो मेंटेन्ड नहीं है ठीक से। और ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ओके, उसी की वजह से हम लोग को ये भी देखने मिलता है कि जो एग्रीकल्चरल यील्ड है, किसी साल अनाज ठीक से उगता नहीं, किसी साल अनाज उगता है तो उसकी क्वालिटी के ऊपर आपको अभी इफेक्ट देखने मिल रहा है। ओके, एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और द ग्लोबल वार्मिंग इज दैट द आइसबर्ग ऑन द आर्कटिक region where ice is present, which is made up of ice, which is made up of snow, it is melting. जो हमारा आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक रीजन है, उसके बाद जो हमारे ग्लेशियर्स है वो सभी क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। ओके, और हमें ये जो केसेस देखो रोज हमें सुनने मिल रहा है न्यूज में, कहीं ना कहीं कुछ पर्टिकुलर ग्लेशियर मेल्ट हो गया, गिर गया कहीं पे। ओके, उस वजह से कोई बहुत बड़ा स्टोन जो है वो गिर गया कहीं पे। ओके, लैंडस्लाइड्स के केसेस देखने मिल रहे हैं। सब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीमेंट के क्या है? सब इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं हम लोग को। ओके, नाउ द अनदर रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज एसिड रेन। ओके, एसिड की बारिश, एसिड रेन। नाउ बाय द नेम ओनली यू कैन सी हाउ मच डेडली और हाउ मच हार्मफुल दिस पर्टिकुलर phenomenon is. Okay, now oxides of sulfur and nitrogen are released into atmosphere through burning of coal, timber, fuel oils and fuel oils. Okay, so these gases, that is sulfur dioxide and nitrogen dioxide, these gases are released in the atmosphere due to the burning of coal, timber and fuels. Okay, so these oxides mix with rainwater and form acids like sulfuric acid, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। होता क्या है कि ये जो गैसेस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस जब बारिश होती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो जाते हैं और उनका रिएक्शन होता है वाटर पार्टिकल्स के साथ में, और क्या फॉर्म होता है? एसिड फॉर्म होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, दिस एसिड्स मिक्स विद रेन ड्रॉप्स एंड स्नोफ्लेक्स एंड कम डाउन एज रेन कॉल्ड एज एसिड रेन। ये एटमॉस्फेयर में ही मिक्स हो जाते हैं और नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। इसके इफेक्ट्स देखो क्या क्या है। देखो, एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीजेस, जो सॉइल की एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है। इट हार्म्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एंटायर फॉरेस्ट लाइफ। जहां पे ये एसिड रेन होगा वहां पे प्लांट्स को वो हार्म करने वाला है, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करेगा। ओके, और एंटायर फॉरेस्ट लाइफ को हार्म करेगा। टोटल इकोसिस्टम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। जहां पे भी गिरेगा ये एसिड रेन वहां के इकोसिस्टम को ये एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है। इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बस्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑकर्स ड्यू टू एसिड रेन। जो हमारी बिल्डिंग्स है उसको वो खराब कर देगा। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्रिविलेजेस जो हमारे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, फोर्ट्स है, पैलेसेस है, उसको क्या करेगा? वो खराब कर देगा। ओके, थर्ड इफेक्ट, heavy metals like mercury and cadmium are absorbed by plants and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain. एसिड रेन की वजह से जो हैवी मटेरियल्स है, मर्क्यूरी और कैडमियम, ये क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और उसको प्लांट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो प्लांट क्या हो जाता है? फिर पल्यूट हो जाता है, वो प्लांट खराब हो जाता है। और उस प्लांट को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में वो एडवर्सली इफेक्ट करेगा, इवन इट कैन लीड टू कैंसर। ओके, फोर्थ इफेक्ट,
due to acidification of water in water bodies and pipes, leaching of metal and plastic material occurs in water and thereby serious health problem arise. देखो जब ये पानी में मिक्स हो जाता है, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, और अगर वो पानी हम लोग अगर पिएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे बॉडी को भी क्या करने वाला है, बहुत ही सीवियरली अफेक्ट करने वाला है. ओके, जितने भी आसपास मेटल्स या फिर कुछ भी होगा, प्लास्टिक का कोई सामान होगा, तो सबको क्या कर देगा, वो एसिड रेन खराब कर देगा. ओके, now if we want to prevent this acid rain या फिर if we want to prevent the air pollution, हम नहीं चाहते कि एयर पोल्यूशन हो ज़्यादा, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसको. देखो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स हार्मफुल पार्टिकल्स, हेंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज्ड, दैट इज एग्जांपल्स अरेस्टर्स एंड फिल्टर्स. ओके, देखो जो स्मोक रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, अगर वो हम लोग कम कर दें, स्मोक का जो रिलीज ये है एलिमिनेशन है, उसको हम लोग कम कर देते हैं, या फिर हम लोग फिल्टर्स लगाते हैं जिससे जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, हार्मफुल गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में ना मिक्स हो जाए. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं. ओके, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज, जो वेस्ट मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, उसको अच्छे से डिस्पोज करना भी ज़रूरी है. हम कैसा डिस्पोज करते हैं, हम लोग जमा करते हैं, एक ट्रक आती है, उसमें सब कचरा डालते हैं, और वो कचरा फिर कहाँ पर जाता है, डंप यार्ड में जाता है. लेकिन डंप यार्ड क्या है, कंप्लीटली एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर को. उस वजह से क्या होता है, जो स्टिंकिंग है, जो गंदी बास निकल रही है उस सब कचरे से, गार्बेज से, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं, और उनसे भी क्या हो सकती है, बीमारियां लग सकती है. थर्ड, कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो हर रोज आपको ऐसे एक कहीं ना कहीं से न्यूज देखने मिलेगी, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने एटॉमिक टेस्ट किया है, एटॉमिक मिसाइल्स का लॉन्च करके टेस्टिंग किया है. ओके, नॉर्थ कोरिया का नाम आता है. तो ये सब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, जब एटॉमिक वेपन्स को ब्लास्ट करते हैं, मिसाइल्स को ब्लास्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो हार्मफुल गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. ओके, तो ये जो एटॉमिक टेस्ट है हमारे, उन्हें भी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, फोर्थ है कंट्रोल और बैन ओवर CFC प्रोडक्शन. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ओके, विच इज वन ऑफ द मेजर एयर पोल्यूटेंट, उसको कंट्रोल करना या फिर कंप्लीटली बैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो दिस आर सम प्रिवेंशन मेथड्स, ओके, प्रिवेंटिव मेथड्स विच वी कैन टेक टू स्टॉप द एयर पोल्यूशन. ओके, नाउ we measure the quality of air, okay, in a particular city or a region in the form of air quality index. देखो बड़े बड़े शहरों में एक बोर्ड्स लगाए जाते हैं, और उस बोर्ड पे आपको AQIs दिखाया जाता है. AQI मतलब क्या, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका शो किया जाता है. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन देयर सिटी. ओके, हमारे शहर में एयर का कैसा क्वालिटी है, क्या है एयर की क्वालिटी, वो हमें मालूम होना चाहिए. सो एज टू डिफाइन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रोपोर्शन ऑफ SO2, CO, NO2, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर एक्सेट्रा इज मेजर्ड एवरी डे. जो ये गैसेस है वो कितना है एटमॉस्फेयर में, वो हर रोज मेजर किया जाता है, और ऐसे बोर्ड्स लगाए जाते हैं जिसके ऊपर इनका मेजरमेंट आपको दिखाया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के भी ऊपर है, इसका मतलब क्या है, वो हमारे लिए खतरनाक है. इवन मोर देन 50 इज नॉट गुड. ओके, लेकिन हमारे देश के राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर भी रहता है. ओके, which shows how much severely our own capital city is polluted. Okay, air pollution, the extent of air pollution is very high in our cities, okay, in India. Okay, so it is very much important for us to prevent air pollution, okay, so as to have a better life and so as to have a very good future for our upcoming generations. Okay, now in the next lecture we will start studying water pollution. Okay, until then, goodbye.